Okay, friends. Good morning, all of you. Lipnan, आवाज वस्तुंदट्रा? Robi sir, are you got my voice? Yes, sir. Can I start, sir? Please, please. Okay, sir. Okay, sir. Good morning, friends. Good morning, all of you. Once again, welcome to today our VBA Visual Basic for Applications virtual class. I think you people are, I hope you are fine, as well as you are understanding my classes. मैं आशा रखता हूँ आप सुरक्षा में हैं, साथ साथ जो भी मेरा क्लासेस आपको समझ में आ रहा होगा. As usually, I'm telling daily to the thanks to my all these departments. Thankful to my DZ staff members as well as IT cell provide this type of virtual class environment to conduct these online classes. And also my special thanks to my NST Noida HOD Swati Sethi madam and principal Shishu Madhur madam and all my staff members to allow me conducting this online classes. And thankful to my staff members V Babu sir Indore, Raju Kannan sir Bangalore, Bannabag sir Hyderabad, Rinku madam Jaipur, Tulika madam Panipat, Sanjay sir Vadodara, Hemlata madam Indore, Jyoti Bandari madam Mumbai, Sam Sivara sir Mumbai, Sarika madam Allahabad, Ruba madam Trivandrum, Niyogi sir Kolkata, Gaurav sir Tura. And my special thanks to all my students who are joined for today virtual class of this VBA. Friends, from myself, A. Gurulu, vocational instructor. Mobile number is 9015983271. The email ID is guruNVT@gmail.com. Yesterday means कल मैं कुछ लोगों को ईमेल किया हूँ जिन्होंने पीपीटी के लिए रिक्वेस्ट किया है, लेकिन व्हाट्सएप वालों को कर नहीं पाया हूँ. आज मैं व्हाट्सएप कर दूंगा. जिन्होंने ईमेल नहीं दिया है, व्हाट्सएप से मांगा, उनको फिर मैं आज भेज दूंगा थ्रू व्हाट्सएप. फ्रेंड्स, एरे के बारे में मैंने बताया है 2 दिन. एक वेरिएबल के अंदर एक से अधिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए एरे को हम काम में लेते हैं. स्कूल के क्लास के अंदर 40 बच्चों का नहीं तो 60 बच्चों का मार्क्स, कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज नेम्स और एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम या एम्प्लॉय नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर लाइक दैट. उदाहरण के लिए यही चीज है, हम लास्ट क्लास से हम डिस्कस कर रहे हैं हम. सो मैं ये थ्योरी पार्ट बार बार समझा के समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ. आज थोड़ा प्रैक्टिकल सेक्शन में ज्यादा ध्यान देना चाहता हूँ. फिर भी if any new student was joined here today in class, then those people's purpose I want to give a small recap. So array is another type of memory variable. ये दूसरी type of memory variable है. array memory main memory RAM के अंदर ही store करेगा variables को. ध्यान रख, array can be hold store more than one value in a single variable. एक ही variable array क्या करेगा, एक से अधिक value को store करता है. When a series of values are stored in a single variable, then it is known as an array. Suppose if you have created marks as integer dim, so marks is one of the variable. It can hold the integer type data. It can hold only one value. Please remember. But if you want to store 40 students' marks, then marks variable can convert it into array. In VBA, array can hold more than one value of different data types. तक वो देखा नहीं, अभी हम देखेंगे क्लास में. एक एरे वेरिएबल के अंदर एक से अधिक टाइप में मिक्स्ड टाइप डाटा को भी हम स्टोर कर सकते हैं. दैट मींस इट कैन होल्ड इंटीजर, स्ट्रिंग, डेट एक्सेट्रा इन ए सिंगल वेरिएबल. एग्जांपल्स, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एक कार्यालय, फैक्ट्री, कंपनी, इंडस्ट्री, एक ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयज का डाटा. लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम्स इन ए क्लास. एक क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट्स के नेम्स रोल नंबर का साथ. List of products and their costs hold by a store. एक store का अंदर product item and item cost. Customers and their telephone numbers.
हर एक स्टूडेंट्स का मार्क्स, टेस्ट स्कोर, टेबल ऑफ डेली रेनफॉल, रेनी सीजन में प्रतिदिन यानी एक दिन कितना रेनफॉल हुआ है, बारिश हुआ है, बारिश का मेजरमेंट आवर वाइज या तो डे वाइज. If you want to store, then that time you are using this arrays. ड्राइविंग लाइसेंस नंबर पता चलेगा तो कैंडिडेट नेम एंड एड्रेस वगैरह. So that means you can store driving license number and candidate name, policy LIC policy number and policy holder name, certificate number and certificate name. Suppose if a person got a job in a government sector or repeated public sector, then at the time of documentary verification they can check their certificates through that certificate number. Or if the policy is expired, or if that policy will reach to the maturity, then they can check through that policy number only. Like that, suppose if a person got an accident or somewhere, he gone through a vehicle, then that time they can check that particular person details through that license number. Then somewhere where the restriction is there, security system is there, then that time if any new person is entered into that particular campus, such as IIT and some other industries, main universities, research centers, scientific centers, then first of all the security persons can check the candidate identification through that particular driving license number. So what I'm telling here, क्या बताना चाहता हूँ, इस तरह इंफॉर्मेशन, मेन इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, वो भी एक ही वेरिएबल का अंदर, एक से अधिक डाटा को, तब एरे कॉन्सेप्ट को काम में लेते हैं. तो एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं? डिम एरे नेम, ब्रैकेट के अंदर साइज बताना पड़ेगा एज डाटा टाइप. उदाहरण लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया ये चीज. सो डिम मास्क की जगह पर डिम EMP ब्रैकेट में 50 एज स्ट्रिंग. सो 50 एम्प्लॉयज नेम्स 51 तक स्टोर कर सकते हैं, 0 से लेकर 50. तो 5 है तो 0 to 5 6. So although the array size is indicated as 5 means it can hold 6 values as array index starting from 0 से लेकर 5 तक, यानी टोटल 6 वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं. array index cannot be negative. नेगेटिव माइनस इंडेक्स कभी भी नहीं होता है. इस अंदर जो लिखा हुआ वैल्यू कहते हैं हम इंडेक्स, सबस्क्रिप्ट, ठीक है, डिफरेंट डाटा को स्टोर करते रहते हैं. ये चीज हमने डिस्कस किया है. इसके अलावा मतलब बिना साइज से भी हम array को डिस्कस कर सकते हैं, वो चीज हम देखेंगे. लास्ट टाइम मैंने क्या किया है, कल नहीं परसों के क्लास में, डे आफ्टर मींस थर्डे, 2 दिन पहले क्लास में मैंने क्या समझा, एंड ऑफ द मूवमेंट में 15 मिनट पहले फटाफट मैंने वो 2 डायमेंशनल एरे के बारे में डिस्कस किया है, एक मैट्रिक्स को रीड करके कैसे प्रिंट करना ये चीज. तो वी विल in this class we clearly discuss that concept, means 2 dimensional or multi-dimensional arrays. I want to stop this presentation. We will enter into the practical section. So friends, nan sharing avanattu undi. So Ruby sir, can you watch my Excel sheet? Okay friends, look at here, I am increasing the font size. In this session we will discuss 2 dimensional array or multi-dimensional. 2 dimensional array. 2 dimensional array having means अब तक जो सिंगल डायमेंशनल array में क्या है, a particular array having only one dimension, means last class we have discussed it. Dim yes name of file as string. This is only one single dimension. It can hold 6 student names, or suppose dim marks marks. Okay, ऐसे भी दे सकते 1 to 5.
as integer. जीरो को मतलब जीरो को एक्टिव मोड में नहीं लिख रहेंगे. 1 मीन्स इंडेक्स 1 से लेकर 5 तक 5 वैल्यूज को स्टोर करने के लिए. So that means here only one dimension. Means अगर आप confusion है तो simply you can write here. Suppose 50 students को marks store करने के लिए dim marks of 50 as integer. This one 50 or 5, these are called as single dimension. If I want to store two dimensional, means suppose employee name and employee code or employee roll number and student name, like that. Or in generally what I'm telling in students, for easy understanding purpose, when the two dimensional array, whenever you are discussing about the two dimensional array, we are consider the matrix. स्टूडेंट्स लाइफ में क्या है, आसान से समझने के लिए क्या बताते हैं हम, मैट्रिक्स का बारे में उदाहरण बताते हैं. देखिए ये मैट्रिक्स है. तो हियर this matrix having two dimensions. These are rows. Columns. Here in this one, yesterday one student was asked this confusion how to determine which one is the row and which one is column. First one will indicate the row, second one column. So it's a two-dimensional array having two dimensions. One is row, second one is column. Dim array array name. तो टू डायमेंशनल array डिक्लेयर करने हैं तो फिर रोज के लिए कॉमा कॉलम्स as dot type. सिंटैक्स रूल नियम. अब सपोज एग्जांपल कैसे देखेंगे हम, अगर यही मैट्रिक्स को डिक्लेयर करने के लिए सपोज डिम ये एक मैट्रिक्स, मैं इस मैट्रिक्स को स्टोर करने के लिए 2 by 2, you simply forget little bit time. जीरो के लिए हम भूल जाएंगे क्योंकि एक्सेल के अंदर जीरो रो है नहीं, कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोगों. तो डिम ये 2, 2 as integer. इसका मतलब ये है dim is used to create a variable, but if a variable having parenthesis means brackets, then that one will be treated as an array. एक वेरिएबल नेम का आगे ब्रैकेट्स है तो वो एक एरे को रिप्रेजेंट करते हैं. देन आगे डाटा टाइप. तो हमने ये क्या बता रहा, डिम ये ऑफ 2, 2 मींस ये एक एरे माना जाता है, लेकिन ये सिंगल डायमेंशनल नहीं है, टू डायमेंशनल एरे. So first one is 2 will indicate the 2 rows, second 2 will indicate the 2 columns. So then what happened here, अगर इसको स्ट्रिक्टली बात करेंगे तो फिर ये नाम से मेमोरी का अंदर एक एरे डिफाइन किया इन्होंने. फिर एक्चुअली 0, 1, 2 3 rows, again 0, 1, 2 columns. मतलब 3 0 से लेकर 2 है ना, but in our MS Excel there is no 0 row and 0 column. So as a means programmer learners, we are ignoring the 0, then we can use this 1 से 1, 2 only. So here अगर सपोज इसको पर्टिकुलर चीज, इन चीजों की अगर इसकी ही बात करेंगे तो फिर क्या होगा, 1, 1 0 हम भूल जा रहे हैं. सपोज 1, 1 1, 2 इस सपोज 1, 1 1, 2 इस तरह. इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम, अगर लिखते समय पर ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेम फर्स्ट रो
सेकेंड कॉलम। अगर इसको सर फिर इसको क्यों तोड़ दिया आपने, अगर आपको डाउट है तो देखिए 0, 0 क्या है, 0 रो एंड 0 कॉलम, 1 रो एंड 0 कॉलम। ये है सेकेंड रो कॉलम 0। कॉपी करके चेंज, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड। इसको कैसे, रो तो 0 है फर्स्ट कॉलम, जीरो रो second. So due to that reason, here the 0 representations we are ignored. 1, 2, 3 something, एक से लेकर हम उस वैल्यूज को काम में ले। देखिए मैंने कॉलम सेलेक्ट किया है, फिर होम मेन्यू पर गए मैं, सपोज आई वांट टू इंक्रीज दैट वन, यू नो वेरी वेल अबाउट कॉलम विथ सपोज 8 some 10। your understanding purpose, this is the representation। अगर ये एक मैट्रिक्स को हमने डिफाइन किया तो फिर इस तरह इंटरनल इंडेक्स बन जाता है इसका मेमोरी में, यानी कंप्यूटर मेन मेमोरी रैम का अंदर। तो कैसे इस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर कुछ वैल्यू लिखना है तो इसी को हम दूसरी जगह, ये तो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन हम देख नहीं सकते फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मेमोरी के अंदर इंटरनली। अब इस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर लिखने के लिए एरे नेम का साथ इंडेक्स, दैट मींस ये ऑफ 0, 0 लोकेशन के अंदर लिखने के लिए ए ऑफ 0, 0 इज इक्वल टू डायरेक्ट कुछ भी ले सकते हो अगर असाइनमेंट के हिसाब से। ये हो गया, अगर इस तरह सेंटेंस कोडिंग में लिखा है तो ए बी सी वैल्यू को क्या एरे ए का अंदर 0, 0 0 रो 0 कॉलम का अंदर लिखना चाहते हो, इसलिए ए बी सी इधर लिखेगा। एक तो ये हो गया असाइनमेंट इक्वल ऑपरेटर का सहारा से। लेकिन उसी लोकेशन के अंदर डायरेक्ट दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, हम डेली डिस्कस कर रहे हैं। अगर इस लोकेशन के अंदर लिखना है ये ऑफ 0, 0 इज इक्वल टू दूसरी तरीके क्या है, इनपुट बॉक्स फिर एंटर डाटा, कुछ भी लिखिए नेम है तो नेम, एंटर whatever it may be। देन कीबोर्ड से इनपुट बॉक्स से डाटा देते समय पर इस टाइम सपोज PQR टाइप किया आपने, सो देन व्हाट हैपेंड इज इक्वल फ्रंट में से PQR इनपुट बॉक्स से दिया हमने तो PQR विल बी असाइंड और रिटन इनटू दैट पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन, इसी लोकेशन के अंदर PQR लिखेगा। So now we will concentrate this area। So once you are create a 2-dimensional array in memory, in especially for VBA, 0 substitution also allowed, 0 index, so it means 0 row and 0 column। So here 2, 2, a of 2, 2 means ये एक array है 2-dimensional array, उसके अंदर 0 से लेकर 2 3 rows, 0 से लेकर 2 3 columns। For our convenience, at the time of transfer the data into MS Excel sheet, there is no 0th row and 0th column, so temporarily we are not using this 0th rows and 0th columns, we are using this area, that is this one। So if you want to write in this particular location, then how can you represent, हम इस particular location के अंदर लिखना चाहते हैं तो कैसे represent कर सकते हैं इसको, इस इंडेक्स को, ये of 1, 1। अब एक स्टूडेंट कंफ्यूजन, सर इसमें कौन सी रो है कौन सी कॉलम है, सो फर्स्ट वन विल इंडिकेट द रो, सेकंड वन विल इंडिकेट द column। So here a1, 1 is equal to
10 means we are assigning 10 number integer value into array first row and first column. First row and first column ये है. और एक क्लैरिटी के लिए और भी बढ़ाना है तो फिर एज ए टीचर मैं बता सकता हूँ. देखिए इधर ये है, अगर आपको कंफ्यूज नहीं तो ये कॉलम है. These are columns. 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 एरे का अंदर कॉलम्स क्या है? ये 0 एक कॉलम, 1 सेकंड कॉलम, 2 थर्ड कॉलम. इसी तरह ये रो, अगर रोज की बात करते हैं हम, ये रहा 0 1. अब देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0, इसलिए मैंने इसको शुरू में क्या बताया? 0,0. अगर इफ एनी लोकेशन इस एरे का अंदर मेमोरी लोकेशन में एक पर्टिकुलर सेल यानी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए बात करते हैं कि इंडेक्स का द्वारा ही रिप्रेजेंट करते हैं हम. इंडेक्स इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन, मींस एक लोकेशन वैल्यू एरे का अंदर. तो रो एंड कॉलम 2 डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल है. तो फिर इसमें सपोज इस पर्टिकुलर इसमें लिखना है 1 10, तो ए ऑफ 1,1 इज इक्वल टू 10. ये लिखने के वजह से क्या करेगा? एग्जीक्यूट करते समय पर what happened? The 10 will be transferred into a of 1,1. ये रहा a of 1,1. इस a of 1,1 का अंदर 10 को लिख देते हैं. ये एक्चुअली आपको दिखाने के लिए. फिर इस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर स्टेटमेंट रन होते समय पर क्या करेगा? ये मेमोरी लोकेशन के अंदर 10 लिखेगा. अगर सपोज नेक्स्ट क्या है 1,2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 20 लिखना है. तो a of 1,2 is equal 20 means 20 वैल्यू इज इक्वल टू ऑपरेटर होने के कारण से राइट साइड वैल्यू लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेगा. 20 will be transferred into a of 1,2. ये वन एरे 2 डायमेंशनल फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. ये रहा ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मींस ये 1 रिप्रेजेंट करते हैं. तो जी इस तरह जो भी दिया हमने, तो फिर 20. अभी इस पर्टिकुलर नेक्स्ट 2 रो मींस थर्ड रो, एक्चुअली 2 रो मींस सबस्क्रिप्ट एलिमेंट वैल्यू. सो उसकी बात करते हैं हम 2,1 equal to 30. Then at the time of executing this one 2,1 with this location के अंदर 30. Same way, suppose second row second column 0 जोड़ दिया. So second row second column this one, तो 40 suppose value change कर रहा हूँ 40, so 40 will be written into this location. अगर असाइनमेंट ऑपरेटर का साथ एक एरे के अंदर लिखना है तो यही तरीका है. इसी को हम इनपुट बॉक्स का सहायता से फॉर लूप से चलाते रहते हैं. ठीक है. सो नाउ लास्ट क्लास आई वाज एक्सप्लेन how to read a matrix, suppose 2 by 2 3 by 3. So then today we simply read a matrix and display that particular matrix. Step by step हम डिस्कस करेंगे. I've taken another sheet. Three by three matrix. रीड करने के बाद प्रिंट करना है. टू रीड द 3 by 3 matrix and print a same in Excel sheet. For this purpose we are writing a code. Suppose you can assume it. First column A, second B, third C. 1 2 3 इस एरिया के अंदर हम प्रिंट करना है. ये है हमारा यूजफुल एरिया. columns. Okay, I think it is visible. सबको दिखाई दे रहा होगा. नहीं तो फिर we will I want to increase this
column width. Okay. And the row height, format row height 30. I want to give some 50 or so. Please here, before implementing that command button, I'm explaining here like it at whiteboard. Assume it. First of all, if you want to write a coding, dim array को declare करना है. Dim a of मेरा matrix name, नहीं तो matrix लिख सकते हैं. ये a को काम में ले रहा हूँ 3/3 as integer variable creation. So rows, columns, देखिए 1 2 3 रोज के लिए वेरिएबल रीड करने के लिए एक वेरिएबल, कॉलम्स के अंदर वेरिएबल्स लिखने के लिए मतलब रीडिंग के लिए दूसरी वेरिएबल. यानी एक 2 डायमेंशनल एरे के लिए 2 लूप्स यूज करना पड़ेगा. dim I, j, ये क्या है? काउंटर वेरिएबल्स. dim I, j as integer. Okay. Then I want to read matrix elements. Put a comment. Single quotation is called as a single quotation used to write comments in your VBA code. VBA coding के अंदर comments लिखना है तो single coding का साथ लिख सकते हो या तो rem भी use कर सकते हो. Remarks. Okay. To read matrix elements. तो मैं इधर matrix elements read कर रहा हूँ. मैं ये बात बता रहा हूँ. चल गैप दे देते. So first of all, for I is equal to 1 2 3, 0 को हमने छोड़ दिया. फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो. लेकिन कॉलम्स भी दिए हैं. फॉर j is equal to 1 2 3. ये 1 2 3 means this one is used for rows purpose. I variable is used to represent as row numbers, rows. अब j कॉलम के लिए लास्ट क्लास में मैंने बताया आपको फॉर i इज इक्वल टू 1 2 3 मींस इतना सबको तो समझ में आना चाहिए. i वैल्यू पहले 1 से शुरू करेगा. ये कंडीशन सही हो जाते हैं. अगर i वैल्यू 2 होने के बाद भी हो जाता है ट्रू. i इज इक्वल टू 3 के बाद मींस 3 times loop will be repeated. That is the advantage of the loop. We are already discussed. For i is equal to 1 2 3 means for loop will be repeated 3 times. First time i is equal to 1 1 2 2 3 कंडीशन ट्रू रिपीट करेगा. फिर इंक्रीमेंट नेक्स्ट होने के बाद ट्रू, तब भी सही माना जाता है कंडीशन. आई वैल्यू 3 होते समय पर भी. अगर j is equal to 1 2 3 means again j loop will be repeated into 3 times. j is equal to 1. अब ये इंटरनल लूप के बारे में शॉर्टिंग में समझना है तभी देखिए प्लीज. अब आपको क्या समझ में आना चाहिए? आई लूप 1 फॉर आई वैल्यू 1 होते समय पर, अब थोड़ा डीपली जा रहा हूं. आई वैल्यू 1 होते समय पर क्या हुआ? जे वैल्यू दोबारा 1 से शुरू करके कंडीशन ट्रू होने के कारण से अंदर जाके जो भी लिखते हैं हम वो रिपीट करते हैं. फिर जे वैल्यू पहले बढ़ेगा. जे वैल्यू ट्रू होने के बाद ट्रू है तो तब भी रिपीट करते हैं. जे वैल्यू 3 है तो तब भी इंटरनल लूप यानी जे लूप कॉलम्स रिपीट कर देगा. अब नेक्स्ट स्टेज में क्या? आउटर लूप यानी आई लूप बढ़ने के वजह से आई वैल्यू 2 होगा. आई वैल्यू 2 होने के बाद 2 2 3 कंडीशन ट्रू है. अगेन जे वैल्यू 1 से शुरू कर देते. अब जे वैल्यू 4 हो गया तो तब क्या होगा? नेक्स्ट वैल्यू में 4 2 3 कंडीशन फॉल्स, बाहर आ जाते हैं. बाहर आने के बाद नेक्स्ट आई होगा. नेक्स्ट आई होने के कारण से कि आई वैल्यू बढ़ते हैं. आई वैल्यू 3, जब आई वैल्यू 3 होने के बाद दोबारा जे वैल्यू 1 से शुरू होते 2 3 तक कर देगा. अगर मान लीजिए आई वैल्यू नेक्स्ट आई तो है, तो नेक्स्ट आई होने के कारण से आई वैल्यू 4 आ गए तो क्या है? कंडीशन
फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ये आ जाएगा। अगर अभी भी आपको डाउट है i इज इक्वल टू 1 है तो क्या 1 to 2 1 to 3 ये कंडीशन ट्रू माना जाता है। i वैल्यू 1 है तो कंडीशन ट्रू। कौन सी लूप? फॉर लूप। अब ये फॉर जे लूप में क्या है? फॉर j इज इक्वल टू 1 2 3। सर जे में 4 नहीं होगा क्या? जे में 4 वैल्यू तो होगा नेक्स्ट में, लेकिन ये फॉल्स हो जाता है। ये फॉल्स है तो जे लूप से बाहर आ जाता है। एग्जिट, जब फॉल्स हो गया तो क्या होगा? एग्जिट फ्रॉम जे लूप यानी इंटरनल लूप। आप समझने के लिए कोशिश कीजिए प्लीज, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, सो टू लूप्स आर देयर। फर्स्ट इट विल एग्जीक्यूट द एक्सटर्नल लूप, फर्स्ट लूप, देन इंटरनल लूप जे लूप। ये दो लूप लिखे हैं तो हमने वन होते समय पर कंडीशन ट्रू माना जाता है। फिर अंदर गया j इज इक्वल टू 1 2 3 कंडीशन ट्रू, जो भी लिखते अभी लिखा नहीं हमने, रिपीट करेगा। फिर नेक्स्ट j आ गया तो फिर क्या करेगा इसको? फिर लिख रहा था, सपोज मान लीजिए हमने नेक्स्ट j लिखा है, सो नेक्स्ट j लिखने के वजह से j वैल्यू 1 से 2 होगा। फिर कंट्रोलर विल गो टू द बिगिनिंग ऑफ द j लूप, फिर ट्रू होगा, देन ट्रू। अब इसको फॉन्ट साइज कम करके ये j को, j वैल्यू का ना हम अलग कॉलम्स में रेफर, j की ट्रू वैल्यू ब्लू है, ब्लैक फॉर लूप का कुछ अलग कलर डिस्प्ले करें। i वैल्यू 1 है तो ट्रू, फिर j वैल्यू 3 बार चलेगा, लेकिन जब j 4 होगा फॉल्स। नेक्स्ट j होने के मतलब नेक्स्ट j आ गया तो j 4 होने के कारण से एग्जिट फ्रॉम द लूप। ये नेक्स्ट j इधर लिखा है। अब इधर क्या करना है, रीड करेंगे क्या है, मैट्रिक्स रीड कीबोर्ड से लूप्स के अंदर कैसे सेल्स यूज करते हैं। सॉरी, मैट्रिक्स अंदर रीड कर रहे हैं। मैट्रिक्स मेरा ये है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इज इक्वल टू input box, then you can enter any message, enter matrix element। बस इतना लिखा और कुछ नहीं, एक ही है। तो एक है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस मेरा फॉर लूप जे लूप को क्लोज किया है। अब प्लीज ये है जे लूप, इस फॉर्मेट को कॉपी करता हूँ। अब ये फॉर लूप को क्या है, दूसरी कलर ग्रीन। अब फॉर लूप को बढ़ाने के लिए क्या, नेक्स्ट आई। और भी हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, सो क्लैरिटी चाहिए तो क्या है, इसको क्या फॉर लूप का थोड़ा गैप दे देते हैं। i is equal to 1 to 3, दूसरा लूप शुरू कर रहा हूं मैं, फॉर j is equal to 1 to 3, ये कॉलम्स के लिए, ये रोज के लिए लिखा है मैंने इधर क्लियरली। फिर देन अब करना क्या है, एलिमेंट को रीड करो, मैट्रिक्स एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट जो रो है, फिर साथ कॉलम का साथ, नेक्स्ट j। अब इसको थोड़ा दूर लेकर मैं, ये जो लूप है ना एग्जिट, ये रहा। एक ही प्रोग्राम बताना चाहता हूँ क्लियरली, सबको समझ में आना चाहिए। टाइम इज ओवर। सो फ्रेंड्स हियर, सो लुक एट हियर, नेक्स्ट आई हो गया, तो नेक्स्ट आई होने के कारण से लूप हटेगा, जो 2 वैल्यू होगा ये i इज इक्वल टू 2 इस टाइम। फिर j लूप 1 2 3, जब j वैल्यू 4 होगा ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने के बाद क्या होता है, एग्जिट फ्रॉम द लूप, लूप से एग्जिट हो जाता है। फिर नेक्स्ट आई होने के कारण सही वैल्यू 3 हो जाते हैं। फिर अगेन लूप रिपीट, फिर j वैल्यू जब 4 है तो फिर एग्जिट हो जाता है लूप से। देन i इज इक्वल टू 4 होने के बाद कंडीशन फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स है तो एग्जिट फ्रॉम आई लूप, आउटर लूप से बाहर आया। तो ये रीडिंग हो गया। अब प्रिंट के लिए क्या करना है, हम इसी लूप को देखिए, अब हम फास्टली बढ़ा रहे हैं, समझाने के लिए लिखा है। तो देखिए इधर, तो टू प्रिंट मैट्रिक्स एलिमेंट्स,
इन एक्सेल शीट, ये है हमारा शीट एबीसीडी पर प्रिंट करना है। तो एबीसीडी पर प्रिंट करना है तो फॉर i इज इक्वल टू 1 2 3, अगेन फॉर j इज इक्वल टू 3, कहां प्रिंट करना है, सेल्स लिखना बस एक जगह पर, इसलिए मैं क्लियरली लिख रहा हूं सेल्स i कामा j इज इक्वल टू, लिखना है क्या, ये ऑफ i कामा j। सेम वही j लूप 3 बार चलेगा फर्स्ट i का साथ, फिर नेक्स्ट इस तरह 3 प्रिंट कर देता है। इसी को मैं कमेंट बटन के अंदर ऐड कर रहा हूं मैं। अब देखिए मैं गया था फ्रेंड्स, अब प्लीज कॉन्सेंट्रेट किया, डेवलपर, देन इंसर्ट टैब, बटन मैंने ले लिया, नीचे इधर ही रख रहा हूं, फिर डबल क्लिक, देन आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज विंडो। इस बटन के लिए क्या है, लिखना है कैप्शन में मैट्रिक्स, then font size, you know very well about this one, bold, okay, then close, I closed my here। ये देखिए ये बटन मैट्रिक्स आ गया, ये ही कोडिंग है ना, तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ पहले इतना तक, कंट्रोल सी, मैं दो मैं आई कैन नॉट चेंज, मैं इस पे कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो बोर्ड पर समझा एक्सेल पर वो चीज मैंने बटन के अंदर कॉपी किया, फिर जो एक्स्ट्रा लिखा ये हटा देता, बस हमारा कमेंट्स ये है। तो रीडिंग हो गया, फिर राइटिंग मींस प्रिंटिंग के लिए नीचे लिखा है, ये है प्रिंटिंग, सो इस प्रिंटिंग के लिए जो भी लिखा है हमने कॉपी, देन इस बटन पर ले जाके पेस्ट कर रहा हूं मैं। तो कमेंट ये रहा, तो कमेंट के लिए सिंगल कोटेशन, वो प्रोग्राम है सिर्फ इसको बटन के अंदर कॉपी किया, अब रन कर रहा हूं मैं, सेव किया, फिर रन करने के लिए एक्सेल शीट पर गए मैं, सॉरी ऊपर रख रहा हूं मैं। तो ये फॉरगेट दिस वन, अभी रन करते समय पर डायलॉग बॉक्स आएंगे, जो भी नंबर्स देते वो नंबर इस एरिया में प्रिंट कर दे, सॉरी हमने एंड नहीं किया है, दो दो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है एंड सब, टीम प्राइवेट बटन ओके फॉर इज इक्वल टू 1 2 3, क्या कह रहा है, इंटीजर लिया नहीं क्या, ENTEGR, हाँ dim a of I comma j as integer, dim I comma j as integer, then a comment for I is equal to 1 2 3, for j is equal to 1 2 3, input box enter a number, a comma j, next I, okay, do that is okay, then ये comment कुछ unnecessary letters पड़ा होगा इधर, next I, sorry we are not given the next I, second loop हमने close नहीं किया। now design mode I change it here, enter the matrix element, suppose 10 20 30 40 50 60 70 80 90, this is my output। this is the reading loop, then display, सेल्स कमेंट का सहायता से मैंने सेल्स में डिस्प्ले किया है, okay, then please if anybody want to take a photo screenshot make it, or only program, सॉरी कैंसिल कर रहा हूँ, समय 2-3 दिन से चल रहा है, सबको समझ में आया होगा, मैं आशा रख रहा हूँ मैं, देखिए आप लोगों को कॉपी करने के लिए मीन्स प्रोग्राम लिखने के लिए मैं एक्सेल शीट पर लेकर जा रहा हूँ, उसको दूसरा शीट पर पेस्ट किया इधर, एनीबॉडी वांट टू टेक फोटो देन मेक इट, बस ये है प्रोग्राम। इसमें नहीं, अभी एडिशन मैट्रिक्स एडिशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन होगा। So this is our program, okay, I think you are understand, so
Now a developer insert taken one button here, double click this matrix addition. एक मैट्रिक्स को रीड करना पता चलेगा, दूसरे मैट्रिक्स को रीड करेंगे, फिर सेम रिपीट कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर सम करके प्रिंट कर देते हैं. फ्रेंड्स प्लीज लुक एट हियर. सो I want to take this copy, na, or from this button here. We are already written this program. Look at here. I want to make it copy. Control C, Excel sheet, then new sheet, new button. Double click. Here I'm simply putting the PS. I want to create 3 means matrix A of 3, 3. First matrix. B of 3, 3. Second matrix. C of 3, 3. Third matrix. I want to store the result in C matrix. I want to read 2 matrix and store result sum in C matrix. The same look. So first matrix के लिए ये हो गया. अगर आप ये enter the FIRST first matrix elements A of this one. Again I want to copy this one to reading of the second matrix. सिर्फ मैट्रिक्स नाम चेंज करना है B. This is the same to read B matrix. समय नहीं है, फास्टली कर रहा हूं मैं. To read A matrix यानी फर्स्ट मैट्रिक्स. अब प्रिंट बाद में करेंगे. कैलकुलेशन पोर्शन क्या? सम के लिए वही 2 लूप चलाना है. So, ये कमेंट लिख रहा हूं. मैट्रिक्स सम के लिए लिख रहे हैं हम. तो एडिशन के लिए फॉर आई सेम 1 2 मींस फर्स्ट रो से लेकर तीसरी रो तक सेम, पहली कॉलम से तीसरी कॉलम तक करने के. इधर प्रिंट नहीं करना है. सम करने के लिए सम किसके अंदर स्टोर करना है? सी मैट्रिक्स के अंदर. आई कामा जे बस के अंदर इज इक्वल फर्स्ट मैट्रिक्स ए आई कामा जे प्लस बी आई कामा जे. फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम के साथ ऐड करेंगे. एडिशन हो गया. ये तो फर्स्ट मैट्रिक्स प्रिंटिंग हो गया. अब प्लीज लुक एट हियर सेकंड मैट्रिक्स. ये है फर्स्ट मैट्रिक्स हम प्रिंट कर रहे हैं. तो फर्स्ट मैट्रिक्स इधर प्रिंट करने के लिए हमने देखा ये वाली है, तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया. एक गैप छोड़ के सेकंड मैट्रिक्स आपको समझ में आने के लिए मैं जानबूझ के गैप दे रहा हूं. अब रिजल्ट हम प्रिंट करेंगे सी मैट्रिक्स में. देखिए ये मैट्रिक्स फर्स्ट वन, ये बी मैट्रिक्स, ये सी मैट्रिक्स मींस सम प्रिंट कर रहे हैं इसका अंदर. सम रन करते समय पर देखेंगे. दोबारा मैं जा रहा हूं कोडिंग का अंदर. इधर मेरा बटन डबल क्लिक किया, 3 मैट्रिक्स डिस्प्ले किया. फर्स्ट मैट्रिक्स रीडिंग, सेकंड मैट्रिक्स, दोनों को सम. फिर फर्स्ट में ये तो प्रिंट किया, सबको पता चल गया. लेकिन सेकंड मैट्रिक्स को प्रिंट फर्स्ट ये मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स को कहाँ प्रिंट करना है हमें? आगे कॉलम पर. मींस एक तो गैप दे दिया. डी मींस ये फोर्थ कॉलम, फिफ्थ से करना है. सो फिफ्थ पर करना है तो फिर 1 है तो फिफ्थ जाने के लिए 4 ऐड करना पड़ेगा रो को. कॉलम तो वही चलेगा. देखिए फोर्थ रो, दिस वन इज द रो, सेम वही रहेगा. कॉलम नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं. डी फोर्थ रो, डी फोर्थ कॉलम, ये है तो फिफ्थ कॉलम. फर्स्ट कॉलम का साथ फिफ्थ कॉलम पर पहुंचने के लिए +4 करना पड़ेगा. तो इसलिए मैं कोडिंग विंडो के अंदर जा रहा हूं. मैं
सेकंड मैट्रिक्स प्रिंट करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज हो गया, कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, लॉजिक सेम, थोड़ा बहुत देख लीजिए इधर। टू प्रिंट ई मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए क्या करना है, फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 3 फॉर जे ये तो कॉमन, लेकिन लोकेशन चेंज करना पड़ेगा। रो तो वही रहेगा, कॉलम में क्या है, डी तक फोर्थ कॉलम, ई में प्रिंट करना है तो फिफ्थ, तो 1 का साथ फिफ्थ 4 जोड़ने की वजह से तो डी का बाद ई में प्रिंट कर देगा। करने क्या है, बी मैट्रिक्स, डोंट मेक एनी कंफ्यूज। 1 2 3 रोज तो वही है, अब सी ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है हमने, प्रिंट करने में उसको, तो टू प्रिंट सी मैट्रिक्स 1 2 3 फर्स्ट 1 2 3 कॉलम्स 1 2 3 4 मतलब 3 कॉलम्स एंड 3 रोज है, लेकिन एक्सेल सीट पर जाइए अंदाजा लगाने के लिए, ये फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम, सेवेंथ कॉलम, एथ गैप 9 पर प्रिंट करना है हमें, आई जे 10, सो 9 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9, ठीक है। सो हाउ आई एम मेकिंग कैलकुलेशन, में कैलकुलेट कैसे कर रहा हूँ, 1 मींस ए कॉलम, 2 मींस बी कॉलम, 3 मींस सी कॉलम, सो डी फोर्थ कॉलम, ई फिफ्थ, एफ सिक्स्थ, जी सेवेंथ कॉलम, एच एथ कॉलम, 9 आई मींस नाइन्थ कॉलम, सो नाइन्थ कॉलम पर प्रिंट करना है, मेरा आई वैल्यू चल रहा 1, सो 1 नाइन्थ होने के लिए अगर मैं ये लिखता हूँ 1 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 9, सो आई वैल्यू 1 प्लस 8 जोड़ने की वजह से 9 तक जाऊंगा मैं, आई कॉलम में प्रिंट कर सकता हूं मैं, इसलिए इधर क्या कर रहा हूं इंटरनली आई सॉरी जे कॉलम जे प्लस 8 लिखने के वजह से या नहीं 9th कॉलम पर प्रिंट करेगा, इसको प्रिंट करना सी कॉलम के अंदर फर्स्ट एंड सब। आई वांट टू सेव दिस वन, सेव कर लिया मैंने, एक्सेल सीट पर जा रहा हूं मैं, again we want to run it, developer डिजाइन मोड से बाहर आए, 1 फर्स्ट मैट्रिक्स रीडिंग 2 3 फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, इस तरह 4 5 6 7 8 9, हाँ वो कमेंट मैंने चेंज नहीं किया जल्दीबाजी में, भी सेकंड मैट्रिक्स एलिमेंट्स दे रहे हैं हम, उल्टा दे 8 9 7 6 5 4 3 2, तो लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फर्स्ट मैट्रिक्स, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 प्लस 9 10 वैल्यू फंक्शन यूज कर देंगे हम, सॉरी जल्दी तो सॉरी कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं इसको ए बी सी को, एडिशन कहा के इधर, सो देन यू आर यूजिंग वैल्यू फंक्शन val ऑफ ए ऑफ बी, again val of I want to remove this one, again want to run it, suppose 9 8 7 6 5 4 3 2 1, अब सेकंड मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 plus 1 10, 8 plus 2 10, 7 plus 3 10, इसलिए सबका बराबर 10 दिया, अब रैंडमली कुछ भी दे सकते हैं, फिर अभी दोबारा एक और एक दे देंगे, सेकंड टाइम रन करो, रन करने से पहले कोडिंग के अंदर क्या है जल्दीबाजी से पी को चेंज नहीं किया, एंटर द सेकंड मैट्रिक्स, सेव, लुक एट हियर, यू वांट टू रन इट, अभी हम इसको रन करके चेक करेंगे, धीरे धीरे दीजिए, एंटर द फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट, कुछ भी दे दीजिए आप, तो चेंज कर दूंगा मैं, एंटर द सेकंड मैट्रिक्स, देखिए
1 plus 5 6, 2 plus 6 8, 3 plus 7 10. corresponding elements are added. ठीक है, 9 plus 9 18, 8 plus 8 16, 7 plus 7 14, 4 plus 1 5, 5 plus 2 7, 6 plus 3 9. So this is the C matrix means sum addition. C का अंदर हमने क्या किया, स्टोर किया है, एडिशन स्टोर किया दोनों मैट्रिक्स। ये A मैट्रिक्स का है, ये B मैट्रिक्स, C मैट्रिक्स। अब हम प्रोग्राम देखेंगे। ये तो एक मैट्रिक्स को रीड करके प्रिंट करने का, इसी तरह ये एक मैट्रिक्स को दो कॉपी किया मैंने, एक जगह पर B लिखा है, सो एक मैट्रिक्स को प्रिंट किया तो फिर एक जगह पर क्या किया है, B, ठीक है, सेल लोकेशन चेंज किया है। ठीक है, मैं आशा रखता हूँ आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट फ्रेंड्स, here I want to show the code. My time is over. So Guru sir. sir, 1 minute. I want to show this coding only for students purpose. Not designing. Anybody want to make the screenshot? Please make it. Already got the instructions from the anime department. स्क्रीन जानबूझ के बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको फोटोज खींचने के लिए आसान होगा। कर रहा हूँ, रुकिए। देखिए ये रीड फोटो खींचे, ये एलिमेंट्स, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन इतना था। फर्स्ट मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स रीडिंग, ये सेकंड मैट्रिक्स, सिर्फ एक जगह पर B लिखा मैंने। आई थिंक यू आर मेक इट फोटो। देन दोनों मैट्रिक्स रीडिंग कंप्लीट हो गया। अब ये रहा मैट्रिक्स एडिशन का लूप, ये है मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन कंप्लीट होने के बाद अगर एक सेल ये है, ये मैट्रिक्स एडिशन हो गया, ये फर्स्ट मैट्रिक्स प्रिंटिंग, ये मैट्रिक्स, देन B matrix, second matrix, C matrix, sum printing. Please make it photo, screenshot. Then, लेकिन ये J+8 क्यों लिखा है 9th कॉलम पर लिखने के लिए? तो फ्रेंड्स here as easily, बस हमने क्या किया है, ये C के लिए इधर फोल्ड किया है, इसमें कहाँ पर, सॉरी 4 5 B में ये है फर्स्ट प्रिंट मैट्रिक्स एलिमेंट्स, और ये नहीं, B के लिए प्रिंट करने के लिए क्या करना था, B पर प्रिंट करने के लिए C के लिए 8 सही है, ये B के लिए 4। Okay friends, next we'll meet once again tomorrow at the same time. कल का क्लास में और डिस्कस करेंगे, इसके बाद फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स के बारे में डिस्कस करने के बाद फॉर्म्स डिजाइनिंग, we will enter into the forms designing as early as possible within 2-3 days. Okay, thank you Robin sir. Thank you sir. Thank you. Anybody who has कोई doubts नहीं है? Okay sir, thank you sir. Thank you friends. Thanks you once again. रोबी सर कल के लिए मैं रिक्वेस्ट डाल दिया, फिर दे दीजिए।